Hello everyone, welcome back to the site of resonance. In the last class, we have discussed about the buoyancy and the buoyant force that is also known as the upthrust. We have derived an equation of buoyant force that is rho of fluid volume submerged into G, that is the buoyant force. We have seen the factors on which buoyant force depends. It depends on the density of the fluid, volume submerged, acceleration due to gravity and temperature. So these were the things that we have studied in the last lecture, and today we will going to begin with Archimedes principle. So what is Archimedes principle, and we will going to see the practical explanation of Archimedes principle. So let's begin with the Archimedes principle. So what is Archimedes principle? The statement of Archimedes principle is that when a body is partially or completely submerged in a fluid, then the buoyant force or upthrust acting on that body is equal to the weight of the fluid displaced by the body. Once more, what is the statement of Archimedes principle? The statement of Archimedes principle is that when a body is partially or completely submerged in a fluid, then it experiences an upthrust or a buoyant force, and the value of that buoyant force is equal to the weight of the fluid displaced by that body. So Archimedes said that Archimedes was a scientist, and he told us that if there is a fluid like this, and if there is a body which is either completely submerged in this or partially submerged in this, then this body will going to experience an upward force known as upthrust or buoyant force. There will be a net upward force acting on these bodies, that is known as buoyant force or the upthrust, and the value of this buoyant force or the upthrust will be equal to the weight of fluid displaced by the body. This was the Archimedes principle. आर्किमिडीज ने बोला कि अगर कोई बॉडी एक फ्लूइड के अंदर पूरी सबमर्ज्ड है या पार्शली सबमर्ज्ड है, तो उसके ऊपर एक बाइंड फोर्स या फिर अपथ्रस्ट लगता है, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी के इक्वल होती है. उसने ऐसा बोला क्योंकि जैसे ही इसके अंदर जाएगी तो कुछ वॉल्यूम इस फ्लूइड का क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी. कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी? जितना वॉल्यूम इसका खुद का सबमर्ज्ड है. उस वॉल्यूम जिसको इसने डिस्प्लेस करा उसका कुछ वेट होगा, और जो वो वेट है वही इस बाइंड फोर्स के बराबर होगा. ऐसा आर्किमिडीज ने बोला कि वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करा है उसका जो वेट है वो बाइंड फोर्स के बराबर है. हमने जो पिछली क्लास में एक डेरिवेशन करा था, जहां से हमें एक चीज पता चली थी, दैट बाइंड फोर्स इज इक्वल टू रो ऑफ फ्लूइड into volume submerged into G. This is what we have already derived in the last class. ये हमने लास्ट क्लास में डिराइव करा था. अगर मैं यहां से गौर से देखूं तो मुझे कुछ बातें पता चलेगी. देखो, वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितना होगा? वॉल्यूम सबमर्ज्ड उतना ही होगा, जितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड हुआ होगा उतना ही इसने फ्लूइड का वॉल्यूम को डिस्प्लेस करा होगा. मतलब अगर ये बॉडी पूरी लिक्विड के अंदर है तो इसका वॉल्यूम, जो इसका टोटल वॉल्यूम है, इसने उतना ही फ्लूइड क्या कर दिया होगा, डिस्प्लेस कर दिया होगा. अगर ये बॉडी, इतना पोर्शन इस बॉडी का इस फ्लूइड के अंदर सबमर्ज्ड है, तो जितना सबमर्ज्ड वॉल्यूम है उतना ही इसने क्या करा होगा, डिस्प्लेस करा होगा. किसको? फ्लूइड को. तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड इज इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. वॉल्यूम सबमर्ज्ड किसके बराबर है? मेरे हिसाब से वॉल्यूम सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर है.
है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि जितने बॉडी सबमर्ज हुई होगी फ्लूइड के अंदर उतना ही तो उसने वॉल्यूम फ्लूइड का क्या करा होगा, डिस्प्लेस करा होगा। तो वॉल्यूम सबमर्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। डेंसिटी इज ऑफ फ्लूइड, तो इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू जी। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, density into volume will going to give me the mass, isn't it? I know that density equals to mass upon volume, so density into volume will be equal to mass. तो ये किसके बराबर आ गया, mass of fluid, कितना मास, किस फ्लूइड का मास जितना डिस्प्लेस हुआ, तो मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर into g, and mass into g will going to give me weight of fluid displaced. जो कि कुछ नहीं, यही बात है। अब आप समझा आर्किमिडीज ने क्या बोला। आर्किमिडीज ने बोला कि अगर कोई बॉडी पार्शली या कंप्लीटली सबमर्ज्ड है किसी फ्लूइड के अंदर, तो उसके ऊपर जो बाइंड फोर्स लगता है वो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड ऑफ बॉडी के बराबर आता है। लास्ट क्लास के अंदर हमने बाइंड फोर्स का ये फॉर्मूला निकाला था, जहां पे रो ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी मेरे पास बाइंड फोर्स आया था। बेटा जितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड हुआ होगा, जितना बॉडी डूबी होगी पानी में, उतना ही उसने वॉल्यूम क्या करा होगा, डिस्प्लेस करा होगा। तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड कुछ नहीं, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मुझे क्या देगा, मास ऑफ फ्लूइड इनटू जी एज इट इज। मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू जी क्या देगा, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो ये वही बात आ गई जो आर्किमिडीज ने बोली। मतलब जो मेरा इस फॉर्मूले का डेरिवेशन था, दैट इज द प्रूफ ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जो हमने लास्ट क्लास में एक डेरिवेशन करा था, जहां से मेरे पास ये फॉर्मूला आया था, दैट इज द प्रूफ ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये बात और ये बात अलग अलग है, नहीं है। ये बात जो आर्किमिडीज ने बोली उसका ही मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है, that is rho of fluid into volume submerged into G. Okay, so this was the Archimedes principle. अब इसका एक practical proof हम देख लेते हैं, that is the practical proof of Archimedes principle. Let us see that practical proof. In this practical proof, I will going to take a beaker, and in this beaker there is a fluid like this, okay, and the same beaker I am taking as an empty beaker also. I will going to measure the weight of this empty beaker, and let us say the weight of this empty beaker is W2. The weight of this empty beaker is W2. W2 is what? It is the weight of empty beaker. Okay. Now what I will going to do is, see, I will going to take a box and I will going to measure the weight of this box using a spring balance in, and this box is in air. This box is in air. The reading of this spring balance in air, let us say it is W1. So W1 is nothing. W1 is the weight of box in air. ओके मैंने क्या करा, एक बॉक्स लिया, उसको स्प्रिंग बैलेंस से लटकाया और देखा उसका वेट कितना है, W1। तो W1 क्या है, वेट ऑफ बॉक्स है एयर के अंदर। नाउ आई हैव डिप्ड द सेम बॉक्स विद अ स्प्रिंग बैलेंस अटैच्ड टू इट in the beaker. And let us say the weight is coming out to be W3. वेट कितना आ रहा है इसका, W3। अब वो वेट चेंज हो गया और कितना आ रहा है, W3। दैट इज द W3 इज द वेट ऑफ बॉक्स इन फ्लूइड। ओके कोई भी फ्लूइड लिया, उसके अंदर मैंने उसको ऐसे डिप करा, तो जो वेट आया
बॉक्स का, वो कितना हो गया, W3 आ गया स्प्रिंग बैलेंस से। मैंने जैसे ही इसको डिप करा और मैंने यहां पर एक छोटा सा पाथवे बना रखा था, ताकि जितना भी, जैसे मैं इसको डिप करूंगा ये फ्लूइड क्या करेगा, राइज करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इस फ्लूइड के कुछ वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा। ड्यू टू दिस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड उतना ही वॉल्यूम इसका राइज करेगा, और वो मैंने इस पाथवे से इधर भेज दिया। मेरे पास ये आ गया। देन आई हैव मेजर्ड दिस, मैंने फिर इसका मेजरमेंट करा और इसका वेट निकाला। इसका वेट आया मेरे पास, कितना आया वो वेट, W4। मेरे पास कितना वेट आया इसका, W4। नाउ सी व्हाट विल गोइंग टू हैपन। इसका वेट कितना था, W1। जब इसको फ्लूइड में डाला कितना हो गया, W3। तो लॉस इन वेट क्या आया मेरे पास, लॉस इन वेट मेरे पास आया W1 माइनस W3। ये क्या है, लॉस इन वेट। और मेरे पास W4 माइनस W2 अगर मैं करूं, W4 माइनस W2 मेरे पास क्या आएगा, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। क्या आएगा, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। और जब मैंने देखा प्रैक्टिकली तो मुझे पता चला कि ये दोनों चीजें बराबर आई। मीन्स W1 माइनस W3 comes out to be equal to W4 minus W2. I found this, that W1 minus W3 is coming out to be equal to W4 minus W2. मुझे पता है लॉस इन वेट क्या होता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। लॉस इन वेट W1 माइनस W3 इज बाइंड फोर्स, is coming out to be weight of fluid displaced. It is coming out to be equal to weight of fluid displaced. यहां से प्रैक्टिकली प्रूव हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं क्या क्या करा हमने। सी, मैंने सबसे पहले एक बॉक्स लिया और उसको एक स्प्रिंग बैलेंस से हैंग करा। तो जो बॉक्स की रीडिंग थी, मतलब जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग थी, वो आ रही थी W1, मतलब बॉक्स का वेट एयर के अंदर कितना है, W1 है। अब जब मैंने इसको एक लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड करा तो इसका स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग चेंज होकर W3 आ गई, और वो कम आई। वो क्या आई, कम आई। मुझे पता भी था लॉस इन वेट आएगा, क्योंकि एक अपवर्ड फोर्स भी लग रहा है जैसे मैं इसको एक फ्लूइड के अंदर सबमर्ज्ड करूं। तो जब इसको W1 को मैंने इस लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड करा तो इसकी रीडिंग आई W3। तो मेरे पास W1 माइनस W3 मतलब वेट इन एयर माइनस वेट इन फ्लूइड क्या आएगा, लॉस इन वेट के बराबर। तो W1 माइनस W3 किसके बराबर है, लॉस इन वेट। जैसे ही मैंने इसको इस फ्लूइड के अंदर सबमर्ज करा तो इसने कुछ वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस करा। मैंने यहाँ पर ओपनिंग बना रखी थी जिससे जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस हो वो पूरा का पूरा इस कंटेनर में चल जाए। पूरा का पूरा जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ है वो किस में चल जाए, इस बीकर में चल जाए। इस बीकर को मैंने बिना पानी के, मतलब बिना लिक्विड के, पहले ही इसका वेट ले रखा था जो था W2, मतलब वो बीकर का वेट है। किसका वेट है, वेट ऑफ एम्प्टी बीकर। अब जैसे इसके अंदर ये लिक्विड गया तो मैंने इसका पूरे का वापस वेट लिया, बीकर प्लस लिक्विड का, वो कितना आया, W4। वो वेट कितना है, W4। तो W4 माइनस W2 मतलब बीकर प्लस लिक्विड का वेट माइनस बीकर का वेट मुझे क्या देगा, लिक्विड का वेट। तो W4 माइनस W2 इज द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका वेट आ गया, क्योंकि W2 किसका वेट था, एम्प्टी बीकर का। W4 किसका वेट है, बीकर प्लस फ्लूइड जो उसके अंदर है। तो अगर मैं बीकर का वेट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, वेट ऑफ दैट फ्लूइड। तो इसका जो वेट है वो क्या है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जब मैंने देखा तो W1 माइनस W3 दैट इज द लॉस इन वेट, वो बराबर आ रहा था W4 माइनस W2 के। W4 माइनस W2, W4 माइनस W2 क्या है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और W1 माइनस W3 क्या है, लॉस इन वेट। पिछली क्लास में मैंने बताया था लॉस इन वेट किसके बराबर होता है, बाइंड फोर्स के बराबर। तो लॉस इन वेट किसके बराबर आया,
बायन फोर्स के बराबर। तो बायन फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। बायन फोर्स अगर वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है तो किसने बताया था हमको, आर्किमिडीज ने बताया था। ये प्रैक्टिकल प्रूफ कर दिया हमने दैट बायन फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। और जो मैथमेटिकल प्रूफ था वो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, दैट एफ बी इक्वल्स टू रो ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी। तो सारी बातें निकलकर केवल यही आ रही है मेरे सामने कि जो बायंड फोर्स आता है वो आता है रो ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी के बराबर। आर्किमिडीज ने भी यही बोला था, कल हमने प्रैक्टिकल देखा उसमें, कल हमने जो डेरिवेशन करा मैथमेटिकल उसमें भी यही आया था। और ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, जी और टेम्परेचर पे। So this was all about the buoyant force, buoyancy, upthrust and Archimedes principle. Now we are going to have some questions on it. So write down the first question. The first question is, two solids A and B float in water. There are two solids A and B which are floating in water, and it is observed that A floats with half its volume immersed and B floats with 2/3 of its volume immersed. Compare the densities of A and B. Okay, so there are two solids A and B which are immersed in a fluid, that are floating in a fluid, with A with its half of its volume immersed and B with 2/3 of its volume immersed. We have to compare the densities of both A and B. See what is the question saying to me. The first question, there are two blocks. One block is A block and there is another block that is B block. Okay, these two blocks are floating in a fluid, in water. I can say it is floating in water. Both these blocks are floating in water. This is the block A and it is floating with half of its volume immersed, means this is the immersed volume is V by 2, and there is this block B, there is the block B which is floating with 2/3 of its volume immersed. I have to compare the density. Let us say the density of this is rho A and the density of this is rho B. Okay, I have to compare the densities, that is rho A and rho B. ये दोनों एक ही लिक्विड में हमने माना है वो वाटर है, वाटर के अंदर क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, ऐसे फ्लोट कर रहे हैं। इसकी वॉल्यूम कितनी डूबी हुई है, V/2, और इसकी वॉल्यूम कितनी डूबी हुई है, 2/3V. I have to compare the densities of both these solids. सी अगर मैं ब्लॉक ए की बात करूं जो कि मैंने ब्लू पेन से, ब्लू मार्कर से बनाया है, अगर मैं देखूं तो इसके ऊपर लग रहा होगा नीचे mg और ऊपर लग रहा होगा बायंड फोर्स, और बायंड फोर्स बराबर आएगा mg के, तभी ये फ्लोट करेगा, तभी ये फ्लोट कर सकता है। कब, जब बायंड फोर्स किसके बराबर आए, mg के। अगर बायंड फोर्स mg के बराबर नहीं आएगा तो ये हमारी बेसिक एनएलएम से हम जानते हैं एक्सीलरेट करेगा, बट ये एक्सीलरेट नहीं कर रहा, मतलब इक्विलिब्रियम में, मतलब एफ बी किसके बराबर है, mg। फ्रॉम द बेसिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आई नो दैट। नाउ एफ बी की वैल्यू क्या है, आई नो इट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड। वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितना है, V/2 इनटू जी। अच्छा, मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी। डेंसिटी किसकी, डेंसिटी में लिख सकता हूँ सॉलिड की, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू, क्योंकि मैं सॉलिड का मास लिया है, यहाँ किसका मास लिया है, इस सॉलिड ए की, तो डेंसिटी ऑफ ए इनटू कंप्लीट वॉल्यूम इनटू जी, ये इसका मास आएगा, डेंसिटी ऑफ ए इनटू इट्स वॉल्यूम। ओके, कैंसलिंग आउट V and V, what I will going to get, G and G, I will going to get that rho A equals to rho L by 2, rho A equals to rho L by 2। ये मेरे पास इक्वेशन 1 आई। अगर मैं ऐसे ही B की बात करूं तो B की बात जब मैं करूंगा तो इस पे लग रहा होगा नीचे mg इसका,
एम बी ले लेते हैं, यहाँ पर इसको एम ए कर दो, ठीक है, और ऊपर लग रहा होगा इस पर बाइंड फोर्स, तो एफ बी किसके बराबर आ जाएगा, एम बी जी के। एफ बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, मेरे हिसाब से एफ बी की वैल्यू आएगी रो एल इंटू 2/3v, जो कि डूबा हुआ पार्ट है। बाइंड फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और फ्लूइड इनटू सबमर्ज्ड वॉल्यूम, दैट इज 2/3v इंटू जी। और एम बी को क्या लिख सकता हूं मैं, डेंसिटी ऑफ बी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इंटू जी। Cancelling out the terms which can cancel v and v, g and g, what I will going to get that rho of b equals to rho l into 2 divided by 3. This is my equation 2. This is my equation 2. Dividing 1 and 2, I will going to get rho a by rho b equals to rho l by 2 into rho l into 2 divided by 3. Cancelling out rho l and rho l, I will going to get it as 3/4. This is my comparison of rho a and rho b. Rho a equals to 3/4 times of rho b. Okay. So this was my first question. Now write down the next. A body floats with 1/3 of its volume. A body floats with 1/3 of its volume outside water and 3/4 of its volume outside liquid. Then the density of liquid is. There is a body which is floating in water with 1/3 of its volume outside and 3/4 of its volume outside when it is floating in a certain liquid. Then the density of that liquid is. I have to find out the density of that liquid. There is a body which is floating in liquid if I am taking this liquid as H2O, that is water, then it is floating with 1/3 of its volume outside, means 2/3 is inside. If 1/3 is outside, then inside it is 2/3. And when there is a liquid, then 3/4 of its volume is outside, means 1/4 is inside. Okay, I have to tell the density of this liquid. Let us say density of this liquid is rho L and density of water I know it is 1 gram per centimeter cube. Applying the same concept, if this body is floating, means mg is equal to bind force. So bind force is equal to mg. I know bind force is density of water, that is 1, into volume submerged, that is 2/3v into g. Now mass of this body will be density of, let us say, solid, whatever it is, multiply by volume multiply by g. Cancelling out g and g, v and v, I will going to get rho of solid equals to 2/3. Rho of solid is coming out to be 2/3. Now applying again the same concept in case 2, that is when there is certain liquid, then Fb equals to mg. Fb is rho of liquid into v/4, that is volume submerged, into g. And what is m? I can write it as rho of solid into v into g. Cancelling out g and g, v and v, I will going to get rho L equals to 4 times of rho S. Now rho S is 2/3, putting the value 4 into 2/3, I will going to get 8/3 gram per rho L equals to 8/3 gram per centimeter cube. So this is the density of the liquid that I have found. So we can take more questions in our next lecture. Thank you for today. We are going to continue in our next lecture.